It is indeed a matter of pride for me to welcome and introduce our today's chief guest of this valedictory session, Dr. Rajesh Beniwal, Director General Research for Resurgence Foundation. I welcome you, sir, and heartfelt thanks for accepting our invitation. Besides your busy schedule, you have accepted our invitation. Our heartfelt thanks to you. Dr. Rajesh Beniwal has completed his BSc Technology from Lakshmi Narayan Institute of Technology, Nagpur in 1991. Subsequently, Master of Chemical Engineering from University of Roorkee in 1994. He has obtained PhD from Hokkaido University, Japan in 2006. The same university has also awarded Doctor of Science to Beniwal sir in 2006. Postdoctoral work for a year on catalysis for energy and environmental application was carried out before the completion of PhD in 2004-2005. He has industrial and research experience of more than 25 years. A significant contribution of Dr. Beniwal is in the field of cleaner energy and water conservation through low-cost effective sewage treatment, development of highly efficient catalytic system for dehydrogenation of cycloalkanes for hydrogen storage, transportation and delivery application is important contribution providing a solution for high capacity hydrogen storage. Sir has around 52 publications in SCI journals, 5 patents, including 1 US patent, a copyright on software, 2 contributions to books, and guidance manual as research-related achievements. He is a member of Hydrogen Storage and Transportation Committee of Ministry of New and Renewable Energy, New Delhi, and member on state-level expert committee by MOEFCC, New Delhi. Member of Technical Advisory Group of UNDP, consultant to UNDP. Earlier contributed to committees of Pollution Control Board and is presently advising various municipal bodies on decentralized sewage treatment. He is an expert on Environment Balance Asian Committee Bank project in Bangladesh and has worked as a fuel expert also. Automotive emission control expert on Bird Bank project in Mumbai. He has done international collaborations including Japan, Germany, France, Italy, Greece, Romania, Norway, Finland. And on academic side, he is professor to CSIR Academy of Scientific and Innovative Research and MTech PhD guide to Nagpur University and Mumbai University. And sir has guided several PhD and MTech students, with presently guiding 3 PhDs. He is life member of Catalyst Society of India, International Water Works Association, and Indian Institute of Chemical Engineering, and elected fellow of Maharashtra Academy of Science. Now I invite Dr. Beniwal to enlighten us audience with his words of wisdom. Sir, please. Thank you very much for such an elaborate introduction, the CV which I sent you. I'm thankful to Professor Patnaik, Director of NITER, and particularly Dayanidhi ji to coordinate this particular lecture. I'm very, what I say is very impressed with what Professor, I think there is some problem with video is not currently. Sir, everything is all right. Audio, video is. बेनीवाल जी पूरा सुनाई दे रहे हैं आप? सुनाई दे रहे हैं आप? बोलिए. My voice is there? वॉइस है, वॉइस क्लियर है, आप दिख रहे हैं, वीडियो ऑडियो ठीक है, आप बोलिए. ठीक. मुझे कहीं डिस्टर्बेंस दिखाता है. तो मैं सबसे पहले पटनायक जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि मैं जब ज्वाइन किया तब डॉक्टर पाटिल अपनी स्लाइड खत्म कर चुके थे और उसके ऊपर प्रोफेसर पटनायक अपनी टिप्पणी दे रहे थे. द वे ही वाज स्पीकिंग डायनामिकली एंड ऑफरिंग सर्टेन थिंग्स टू डॉक्टर पाटिल, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ गट्स. और साथ में उसके बाद में जो उनका उद्बोधन हुआ वो देखते हुए मुझे लगता है कि ये मतलब पटनायक जी से मैं आज नहीं मिला हूँ, कई वर्षों से मिल चुका हूँ और लग रहा है कि हम लोगों की बड़ी बनेगी आगे चल के. तो जब इतना डायनामिक लीडर हो तो इंस्टीट्यूट को तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है. साथ में रुपेंद्र जी ने जो 5 दिन का आपका अहवाल पढ़ा जिसमें क्या क्या हुआ 5 दिन, वो जब पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया कि ये बहुत डिटेल कोर्स एक्टिविटी रही है. ये जो आत्मनिर्भर भारत के लिए आपने जो चिंतन किया है वो काफ़ी डिटेल में हुआ है. और जब इतना डिटेल में चिंतन होता है और जैसे पटनायक जी कह रहे थे कि इसको डॉक्यूमेंटेशन करना आवश्यक है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन होगा तो ये एक एक्टिविटी या इवेंट से बढ़कर
ये एक आंदोलन में परिवर्तित होगा, और आंदोलन में जब कुछ परिवर्तित होता है तो निश्चित रूप से वो चेंज लाता है, और ये चेंज लाना संभव है केवल आपके जैसे लोगों के साथ में। अब हम आत्मनिर्भर भारत के ऊपर आते हैं, और आत्मनिर्भर भारत के ऊपर मैं आके ये बताना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी, उसके पीछे कुछ और भी बैकग्राउंड है, जो कि मैं समझता हूँ कि मेरे तरफ से मैं इस तरह से देख रहा हूँ उसको, कि जैसे आत्मनिर्भर होने के जो हमें मौके मिले तब तक हमने डेमोन्स्ट्रेट किया, और तब हमने डेमोन्स्ट्रेट किया तब हमारी जो स्थिति थी, वो स्थिति कई बार ऐसे थी कि हमारे लिए कुछ चैलेंजेस तैयार हो गए। मैं पहला उदाहरण लूँगा, जिसमें हमें सुपर कंप्यूटर डिनाई कर दिया गया था। हमें सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता थी हमारे इसरो के प्रोग्राम्स के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, और हमें सुपर कंप्यूटर डिनाई कर दिया गया वेस्टर्न वर्ल्ड से कि नहीं, हम इंडिया को सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे। जब भारत को सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता थी, और तब डॉक्टर विजय भटकर जैसे लोगों ने सामने आके एक सुपर कंप्यूटर निर्माण किया। बाद में हालाँकि अब भटकर साहब जब हम लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आपके हाथ में जो मोबाइल है, वो उस सुपर कंप्यूटर परम संगणक से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और संभवतः है भी। तो लेकिन जिस समय उसकी आवश्यकता थी, हमने वो अपने तरह से डेवलप करके दिखा दिया था, और उसका काम आगे चल गया। क्रायोजेनिक इंजन जो बड़े लो टेम्परेचर पे काम करते हैं और स्पेस रिसर्च में यूज़ होते हैं, उसको भी हमें डिनाई किया गया। इनफैक्ट रशिया देने को तैयार हो गया था, लेकिन उसमें यूएस ने कुछ बीच में अड़ंगा डाला, और कुछ सैंक्शंस का भय दिखाते हुए उसको रोक दिया गया। तो ये जो हमें फिर से क्रायोजेनिक इंजन की बात आई, तो हमने क्रायोजेनिक इंजन बना दिया। अब जब ये हमने रिस्पॉन्ड किया था क्राइसिस क्रिएट हुए थे, और क्राइसिस को हमने रिस्पॉन्ड किया था। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं, वो क्राइसिस की बात नहीं कर रहे हैं। हम अब जो हम बात कर रहे हैं, वो वाला बात कर रहे हैं जो महात्मा गांधी ने कभी हमारे विलेजेस के लिए कहा था, कि स्वावलंबी जो गाँव रहेंगे, स्वावलंबी जो छोटे गाँव है जो अपने आप में स्वावलंबी हो जाएँगे, अपने आप में अपनी सारी ज़रूरतों की पूर्तता वहीं पे होगी, तो गाँव आत्मनिर्भर हो जाएगा। तब शायद वर्ड आत्मनिर्भर नहीं था। अब पूरे देश को आत्मनिर्भर करने की बात आ रही है। इसको करने में हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहली आवश्यकता तो हमें लीडरशिप की होगी, और वो जो लीडरशिप की आवश्यकता है, वो लीडरशिप इसलिए चाहिए कि वो प्लानिंग क्या होगा। टॉप टू बॉटम जब प्लानिंग होता है, तब बहुत सही तरीके से प्लानिंग होता है, और वो प्लानिंग तथा चैलेंजेस, टीम के सामने चैलेंजेस रखने के लिए सक्षम लीडरशिप की आवश्यकता होती है। जो सक्षम लीडरशिप एक देश के लेवल पे तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन हर एक संस्थान के लेवल तक, हर एक घर के लेवल तक भी इसको उतर के आना पड़ेगा, और अपने-अपने जगह पे एक सक्षम लीडरशिप सामने आनी। ये सक्षम लीडरशिप करती क्या है? मैं उदाहरण देके समझाता हूँ। जब रशिया ने तय किया कि 1960 1970 में वो एक मिशन करेंगे, जिसमें चाँद के ऊपर आदमी को भेजेंगे, मैन ऑन मून मिशन करेंगे। मैन ऑन मून मिशन के लिए जब ये बात बाहर पता चली, तो अमेरिका ने कहा कि क्या हम रशिया से 1 साल पहले, उस समय के जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने वैज्ञानिकों को बुलाया, उन्होंने नासा के लोगों को बुलाया, और उनके सामने एक प्रश्न रखा कि क्या हम रशिया से 1 साल पहले, ये वो 68 में बात कर रहे थे, 70 में रशिया का मैन ऑन मून मिशन होने वाला था, तो क्या हम अपना मैन ऑन मून मिशन कर सकते हैं क्या रशिया से पहले? सबने ये कहा कि ये संभव नहीं है। आप आज बता रहे हो लगभग 1 साल में ये करना पड़ेगा। हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, रशिया बहुत एडवांस स्टेज में है, और संभवतः ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, हम कर नहीं पाएँगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं कर पाएँगे, नहीं कर पाने के आप जो कारण हैं, उसकी सूची बनाएँ। उसको एक लिस्ट करें, लिस्ट आउट द रीज़न्स फॉर व्हिच दिस मिशन कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड। अब उन्होंने सूची बनाई पहले कि हमारे पास तो वो कपड़ा नहीं है जिसके साथ में जो सूट बनाया जाए, स्पेस सूट, उस तरह का कोई कपड़ा नहीं है। हमारे पास वो अलॉय नहीं है मेटल का कि जिसके कारण जो री-एंट्री होगी, अ, जो स्पेस शटल होगा, उसकी जब री-एंट्री वापस होगी धरती के ऊपर, तो उसको प्रोटेक्ट करने वाला मेटल का शील्ड देने की हमारे पास पावर नहीं है। ऐसे अनेक विध कारण उन्होंने बताए कि जिसके कारण ये संभव नहीं है कि अमेरिका रशिया के पहले मैन ऑन मून मिशन कर ले। उन्होंने कहा बहुत सही है, अब एक काम करते हैं, अब ये बनाने के लिए कौन-कौन सामने आ सकता है उसको बुलाइए। उन सबको आह्वान करिए कि ये करना है, 1 साल में करना है। और उस समय बहुत सारे
टेक्सटाइल के नए नए स्वरूप सामने आए, नायलॉन, प्रोपिलॉन, अनेक अनेक जो स्वरूप आए, जो पॉलीमर्स के आए थे, वो इसलिए आए कि सारे जो एफर्ट्स क्रिएट किए गए, हो सकता है उनमें से बहुत ही कम जो है वो स्पेस के लिए काम आए, लेकिन बहुत सारी चीजें डेवलप हो गई। हिंडुलॉन, देन एल्यूमिनियम, देन जर्मेनियम, देन ऐसे बहुत सारे जो मेटल अलॉयज भी तैयार हुए उस समय। एल्यूमिनियम से लेके तो बहुत सारे मेटल्स को लेके साथ में एक तरह के बहुत सारे अलॉयज तैयार हुए। वो अलॉयज इसलिए तैयार हुए कि अटेम्प्ट किया गया कि क्या हम वो मेटल शील्ड बना सकते हैं। ऐसी बहुत सारी सिस्टम्स तैयार हो गई। एक मिशन मोड प्रोजेक्ट, एक चैलेंज और ऐसी बहुत सारी सिस्टम अमेरिका में तैयार हो गई। और उसकी परिणति ये हो गई कि 1969 में मैन ऑन मून मिशन अमेरिका ने पूरा कर दिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि एक लीडरशिप थी। लीडरशिप को चैलेंज देना आता था। चैलेंज के बाद में सामने आने वाले प्रश्न को उत्तर कैसे ढूंढा जाए, उसकी मेथोडोलॉजी उनको आती थी। तो ये जो सक्षम लीडरशिप होती है, ये केवल डांट के नहीं काम कराती है, ये चैलेंज देती है, साथ में सॉल्यूशन निकालने का एक रास्ता भी देती है। और ऐसी लीडरशिप जब आती है, तब जाके एक मिशन कंप्लीट होता है। अब दूसरा जो हमें इसमें जरूरत है एक लीडरशिप के बाद में, वो लीडरशिप के बाद में क्या आवश्यकता है कि जो फ्रंट लाइनर्स होते हैं, फ्रंट लाइनर्स उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने कि लीडर्स इंपॉर्टेंट। फ्रंट लाइनर्स का मतलब होता है कि जो अपने हाथ से ये काम करेंगे। कोई तो होगा जो अपने आप से एक्सपेरिमेंट करेगा, कोई तो होगा जो बिना डर के आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, कोई तो होगा जो फेल होने के डर से पीछे नहीं हटेगा और वो अपने लीडरशिप के ऊपर पूरा विश्वास रखेगा। जो लीडर कह रहा है उसको करने की आवश्यकता है, ये उसके मन में आना चाहिए, उसके स्वभाव में आना चाहिए, तभी जाके ये संभव होगा। और ये जो फ्रंट लाइनर्स होते हैं, ये फ्रंट लाइनर्स जब काम करते हैं और जब ये एक ड्राइंग निकालने जैसा है। जिन लोगों ने अपने आप में कभी बचपन में ड्राइंग निकाला होगा या बड़े होके भी ड्राइंग करते होंगे या कोई आर्ट का कोई भी विधि करते होंगे, तो जब कोई चित्रकार चित्र निकालता है तो उससे थोड़ा दूर हटता है और उसकी तरफ एक बार देखता है ऐसे कि बना कि नहीं सही तरीके से, जो मैं सोच रहा था वो उतरा कि नहीं। तो ये जो स्वयं का अवलोकन है, स्वयं अवलोकन जब होता है, वो जब आर्ट में होता है और जब वो देखता है कि मैं हाँ, उस लेवल तक पहुँच गया था, तो उसको एक तृप्ति मिलती है, उसको एक सैटिस्फैक्शन मिलता है कि मैंने ये बना लिया। और ये सैटिस्फैक्शन जब आपके अंदर आता है, तब ये सैटिस्फैक्शन आपकी जो मेंटल लेवल है, वो ऊपर उठाता है और आपसे बहुत अच्छे काम करवाता है। आपकी स्थिति बदल जाती है। आपकी स्थिति बदल जाती है कि आप एक लेवल ऊपर उठ जाते हो कि अभी इसके बाद में मुझे और भी चैलेंज आएगा तो मैं उसको कर पाऊँगा क्योंकि मैंने एक चीज़ करके दिखा दी। और ये एक चीज़ मैंने जब करके दिखा दी है तो इसका मतलब है कि मैं और भी चीज़ें कर सकता हूँ, इससे मुश्किल काम मैं कर सकता हूँ। एक सर्जी बुक्का करके नाम सुना होगा आपने पोल वॉल्टर्स के। पोल वॉल्टर्स मतलब जो वो ऊँची छलांग लगाते हैं बाम्बू लेके, तो वो जो छलांग लगाते हैं उसमें पोल वॉल्टिंग कहते हैं अंग्रेजी में इसको। ये पोल वॉल्टिंग जो होता है, उन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ना चाहा एक ओलंपिक में और वो तोड़ नहीं पाए। वो अपने रिकॉर्ड से भी बहुत कम इस पे पहले अटेम्प्ट में फेल हो गए। वो जब फेल हो गए तो बड़ा आश्चर्य हुआ, लोग देख रहे थे इनको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं क्लियर करने के लिए। पहला अटेम्प्ट फेल हो गया, जो कि उनके खुद के वर्ल्ड रिकॉर्ड से कम ऊँचाई पे। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, इसको और कम करते हैं, क्योंकि थोड़ा और कम होने से ठीक हो जाएगा। तो उनके जो कोच थे और सर्जी बुक्का इनका आपस में डिस्कशन हुआ और उसको थोड़ा और कम किया गया। वो दोबारा फेल हो गए। अब दोबारा फेल होने के बाद में तो ऐसा लगा कि अब गोल्ड मेडल तो गया, सिल्वर मेडल भी नहीं मिलेगा या आउट हो जाएँगे। तो इन्होंने सोचा कि इसका मतलब हुआ कि मैं अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। मैंने पहला तो अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड से कम ऊँचाई रखी थी, उससे कम पे आया हूँ। मैं अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, मैं अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ कर रहा हूँ। अब उसके बाद में जो उन्होंने किया, वो किया कि ऐसा करो, मेरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था उससे 2 इंच ऊपर उठा दो। बड़ा आश्चर्य बड़ा आश्चर्यकारक निर्णय था। कोच ने कहा फिर एक बार सोच लो। आप पहले 2 अटेम्प्ट फेल कर चुके हो जो आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड से कम थे। बोले ठीक है, अब क्लियर होगा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड से ऊपर ही होगा, नहीं तो नहीं होगा, देखा जाएगा। उसके नीचे नहीं करेंगे। 2 इंच ऊपर आत्मबल काफ़ी बढ़ा हुआ था। जो छलांग लगाई वो क्लियर हो गई। गोल्ड मेडल तो मिला ही मिला, दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। खुद का ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ गए। ये होता है चैलेंज देना खुद को भी।
आत्मबल बढ़ाने का। ये आत्मबल बढ़ाने के लिए कोई और नहीं बढ़ा सकता, ये खुद के मन से आना पड़ेगा। कोच तो कह रहा था, एडवाइस दे रहा था कि भाई तुम 2 इसमें फेल हो चुके हो, जो आपकी पहले की ऊंचाई से कम थे, ऐसा करो थोड़ा कम कर लो तो क्वालिफाइंग राउंड में से आगे निकल जाओगे या कुछ हो जाएगा, आगे बढ़ जाओगे। तो उन्होंने कहा नहीं, अब तो जो होना है वो ऊपर के लेवल पे फेल होगे, नीचे के लेवल पे नहीं होगे। दूसरा एक इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप फ्रंट लाइनर्स होते हैं या लीडर होते हैं, तो उस केस में आपको बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है और ये मेहनत करते समय हो सकता है बहुत सारी पीड़ा भी होगी और ये जो पीड़ा है, ये सहन करने की ताकत होनी चाहिए। ये पीड़ा केवल आपको ही नहीं होगी, आपके आस-पास के लोगों को भी होगी, आपके साथ में चलने वाले लोगों को भी हो, क्योंकि आप कुछ बड़ा काम करने जा रहे होगे तो पीड़ा ज़रूर होगी। और ये पीड़ा इसलिए नहीं होगी कि आपने कुछ गलत काम करना शुरू किया, इसको प्रवस पीड़ा करके समझिए। कोई नवसृजन हो रहा है, नवनिर्मिति हो रही है, उसकी पीड़ा अवश्य होगी और वो पीड़ा बड़ी आह्लाददायक होगी, बड़ी आनंददायक होगी जब ये चीज़ सामने आएगी कि आपने क्या बनाया हुआ है। तो ये पीड़ा सहन करने की भी ताकत होनी चाहिए। महाराष्ट्र में स्वराज्य निर्माण के समय राजा शिवाजी छत्रपति बने बाद में, 14 साल की उम्र में स्वराज्य की शपथ ली थी। ऐसा एग्जाम्पल अभी हमारे यहाँ एक कहावत है, हमारे यहाँ जो कहावत है उसमें ये कहते हैं कि शिवाजी राजा को तो हम बहुत बड़ा मानते हैं, बहुत मानते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, स्वराज्य का निर्माण किया और आज भी शिवाजी की आवश्यकता है हर फील्ड में। लेकिन वो शिवाजी शायद पड़ोस वाले के घर में पैदा हो तो अच्छा हो, अपने घर में नहीं। क्योंकि जैसे ही अपने घर में होगा, सारी पीड़ाएँ हमारे घर तक पहुँच जाएगी, सारी तकलीफें हमें भी झेलनी पड़ेगी। तो ये जो दूसरे के घर में शिवाजी पैदा होने वाली बात है, वो हमारे घर में होने तक आनी पड़ेगी, तब तक कि यह आत्मनिर्भर भारत नहीं हो सकता। क्योंकि आत्मबल जब तक नहीं बढ़ेगा, आत्मनिर्भर होना संभव नहीं। और आत्मबल बढ़ाने के लिए जो पीड़ा सहन करने की ताकत है, वो सभी में, लीडरशिप में और फ्रंट रनर्स में, दोनों में होनी चाहिए। और वो जहाँ पे होता है, वहाँ पे उसके रिजल्ट भी मिलते हैं। हमारा ही एग्जाम्पल देखिए, हमारे ही देश का एग्जाम्पल है इसरो। इसरो ने आज आत्मनिर्भरता तो इतनी पा ली है कि वो खुद आत्मनिर्भर केवल भारत की आपूर्ति, भारत की आवश्यकताओं की आपूर्ति करने के लिए सीमित नहीं रह गए। वो विश्व की आपूर्ति के लिए आपूर्ति पूरी कर रहे हैं, विश्व की जो आवश्यकता है उसकी आपूर्ति पूरी कर रहे हैं। वो 104 सैटेलाइट एक साथ भेजते हैं। शायद दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। 104 सैटेलाइट जब और सही तरीके से सही उनकी जो कक्षाएँ हैं उसी में जाके उसको पहुँचा देते हैं, तो ये जब सक्सेसफुली होता है तो वो आत्मनिर्भर केवल भारत की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए नहीं, तो विश्व की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए होते हैं। और शायद इसीलिए हमें विश्वगुरु कहा जाता था पहले, कि हम केवल अपनी बात नहीं कह रहे थे, हम कह रहे थे हम विश्व को कुछ देंगे। तो वो चाहे स्थापत्य कला हो कि जिसमें मंदिर कैसे बनाए जाते हैं, तो कैसे बड़े सभा मंडप बनाए जाते हैं जिसमें बीच में कोई पिलर नहीं होगा। ऐसी स्थापत्य कलाओं से लेके तो ड्रिंकिंग वाटर की बात करते हैं हम, जो पेयजल है उसको कैसे संभवतः पहुँचाया जाए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में तो जो अपशिष्ट जल था, जो सीवरेज था, उसकी ड्रेनेज लाइन भी थी। और अगर हम लोग ये सब जानते थे, हम लोग मेटलर्जी जानते थे, आज भी कुतुब मीनार के सामने एक पोल खड़ा हुआ है, जिसका अलॉय इस तरह का है कि सैकड़ों साल से उसमें जंग नहीं लगा हुआ है। अगर वो करोड़ नहीं होता है, वो उसको जंग नहीं लगता है, इसका मतलब है कि हमने वो अलॉय बना लिया था। और क्या हम वो दोबारा अलॉय नहीं बना सकते जो इतने साल तक टिक सकता है? जो सिंधुदुर्ग में जो जलदुर्ग बनाए गए हैं, वो जलदुर्ग जो है उसमें शीशा लेके उसको बनाया गया है। शीशा मतलब लेड लेके उसको सीमेंटिंग की जगह लेड यूज़ किया गया, पत्थर और लेड से बनाया। उसको सैकड़ों सालों से समंदर की जो लहरें हैं उसके ऊपर पटक रही है, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और ये हमने ही बनाया था, आज से कई सौ साल पहले। अब जब हम ये कर सकते थे वहाँ पे, जब हमको विश्वगुरु कहा जाता था, तो क्या ये विश्वगुरु पद फिर से नहीं आ सकता? ये ज़रूर आ सकता है। और उसके लिए केवल और केवल एक चीज़ की आवश्यकता है, आत्मबल। आत्मबल बढ़ाने के लिए जो लीडर्स होते हैं, वो ये काम करते हैं। हमारे मुकुल जी एग्ज़ाम्पल देते हैं और एग्ज़ाम्पल मैं आपको दोबारा दूँगा यहाँ पे, कि जब मुझे अगर अपनी बॉडी बिल्डिंग करनी है, मुझे अपने इसमें ताकत लानी है, बाहु में ताकत लानी है, तो मैं क्या करूँगा? मैं बाहु में ताकत लाने के लिए क्या इस बाहु को किसी नरम से गद्दे पे रखे रहूँगा, हमेशा उसको घी से मलते रहूँगा और फिर उसको प्रोटेक्ट करते रहूँगा, तब क्या उसकी ताकत बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं। मुझे जाके उसको चैलेंज करना पड़ेगा जिम में, मुझे जाके उसको व्यायामशाला में चैलेंज करना पड़ेगा। जो वज़न मैं आज उठा सकता हूँ, कल उससे ज़्यादा उठाना पड़ेगा। उसमें दर्द होगा, उसमें पीड़ा होगी, उसको मैं जब तक चैलेंज नहीं करूँगा, मेरे बाहुओं में ताकत नहीं बढ़ सकती।
यही मैं जो पीड़ा की बात कर रहा था वो यही है। ये पीड़ा उस तरह से देना पड़ेगी। आज मैंने जो पा लिया, आपके सेफ्टी ज़ोन में, आपके कम्फर्ट ज़ोन में अगर आप काम कर रहे हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा और कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकला हुआ आदमी एक थ्रेशोल्ड वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ जाता है, वो कक्षाएँ लांघता है, सीमोल्लंघन कर जाता है कक्षाओं का, और जब कक्षाओं का सीमोल्लंघन होता है, तभी जाके विकास होता है, तभी जाके आत्मबल बढ़ने का जो सर्जी गुप्ता ने अपने जो पहले के फेल्योर से उसके 4 इंच ऊपर लगा के जब छलांग लगाई, तभी छलांग लगा पाए। और इसके लिए हमें उदाहरण बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे उदाहरण हमारे यहाँ भी है। और दूसरा चीज़ है, हमें फ़ॉलो करने की आवश्यकता नहीं। आत्मनिर्भर बनते समय ये भी ज़रूरी नहीं है, एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ हम ही बनाते बैठे। आत्मनिर्भर बनने का मतलब वो नहीं है। आत्मनिर्भर बनने का मतलब बाहर की सारी दरवाजे, खिड़कियाँ बंद कर दें, विश्व से बात करना बंद कर दें, ये भी नहीं है। क्योंकि जब आत्मनिर्भर बनना होता है, तो हो सकता है हम कोलैबोरेशन से भी कुछ काम कर सकें। हमें कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। हम उनको बाध्य करें कि वो हमसे बात करें। आज इसरो का जो एग्ज़ाम्पल दोबारा मैं यहाँ पे लाना चाहूँगा, इसरो के लिए लाइन लगा के खड़े हैं लोग कि हमारा सैटेलाइट आपके यहाँ से भेजिए ऊपर, क्योंकि बहुत सक्सेसफुली जाता है, उसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हाई है। और हाई सक्सेस रेट दिखाने का और अपना जो कैपेबिलिटी दिखाने का उन्होंने काम कर दिया है, उसके कारण कोलैबोरेशंस बढ़ गए हैं। तो जैसे बाहर के लोग हमारी सेवाएँ लेना चाहते हैं, वैसे हम भी बाहर की सेवाएँ कुछ लें, तो उसमें कोई गलत नहीं है। हम केवल खरीदार नहीं बने। खरीदार बनना गलत है, केवल खरीदार बनना गलत है, हम कोलैबोरेटिव्स में काम करें। तो ये जो आत्मनिर्भर बनने की बात है, वो विश्व की तरफ देखने की और विश्व के साथ में जो कम्युनिकेशन की खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, उसको बंद करने की बात बिल्कुल नहीं है। तो उसको साथ में लेते हुए आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। और आत्मनिर्भर में फिर से मैं ये कहूँगा कि आत्मनिर्भरता जो 5 पिलर्स, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड, इन पाँचों के ऊपर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वप्न दिखाया है, उस स्वप्न के ऊपर बात हो रही है और उसमें भी 5 फेजेज़ किए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत। पाँचों फेजेस में बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमईज, पुअर इंक्लूडिंग माइग्रेंट्स एंड फार्मर्स, एग्रीकल्चर, न्यू हॉरिजॉन्स ऑफ ग्रोथ एंड गवर्नमेंट रिफॉर्म्स एंड एनेबलर्स। उन्होंने गवर्नमेंट रिफॉर्म्स एंड एनेबलर्स को सबसे आखिरी फेज में रखा है, 5वें फेज में। चालू हुआ है एमएसएमई से। इसका मतलब है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें अपनी जो एमएसएमईज है, छोटी उनको सामने लाना बहुत आवश्यक है। मैं इसलिए भी ये कह रहा हूँ कि जब आप अगर इस एक स्टैटिस्टिक्स को देखिए, जो स्टैटिस्टिक्स ये कहलाता है कि जो एम्प्लॉयमेंट का पोर्शन है, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, वो लार्जर परसेंटेज ये छोटे वाले इंडस्ट्री में आने वाला है। ये जो है, ये जाके आपकी जो इकोनॉमी है, आपके जो एम्प्लॉयमेंट है, उसको बढ़ाने के लिए छोटा वाला सेक्टर जो है, वो बहुत काम करने वाला। बड़े सेक्टर की अपनी आवश्यकता है, बड़े सेक्टर की अपनी लिमिटेशन भी है। वो एक फैक्ट्री कितनी भी बड़ी हो जाए, कितने लोगों को ले पाएगी? तो ये छोटे-छोटे हैं, अपने गाँव में, अपने जगह पे जो है, वो शायद ज़्यादा अच्छी इकोसिस्टम बना पाएँगे और इसीलिए जो टारगेट है, वो टारगेट ये है कि संभवतः एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, वो छोटी इंडस्ट्री की तरफ से ही बढ़ेगी। और संभवतः इसीलिए फेज़ 1 में बिज़नेस इंक्लूडिंग एमएसएमईज़, ये पहला टारगेट आत्मनिर्भर भारत का है, जो सारे पाँचों पिलर को टच करता है। और जब हम ये आत्मबल, जब हम ये सिस्टमैटिक मेथड, जब ये हमारे ग्रास रूट लेवल वर्कर्स और जब हमारे लीडरशिप एक साथ काम करते हैं और मिशन मोड प्रोजेक्ट टाइप में काम करते हैं, तो हमें आत्मनिर्भर बनने में कोई रोक नहीं पाएगा। और ये जो वाइब्रेंट डेमोग्राफी होती है, वाइब्रेंट डेमोग्राफी क्या होती है? समाज का हर हिस्सा, समाज का आखिरी वाला आदमी भी अपने आप को डेवलपमेंट का पार्ट समझे। वो डेवलपमेंट करने वाला अपना एक इंस्ट्रूमेंट समझे खुद को। तब जाके हम ये कहेंगे अंत्योदय है। अंत्योदय मतलब ये नहीं कि आखिरी वाले आदमी तक आप रेशन पहुँचा रहे हैं। आप उसको 2-4 महीने की कोई सपोर्ट कर दे रहे हैं। ये अंत्योदय नहीं होता है। अंत्योदय वो होगा जिसमें जो आखिरी वाला आदमी है, जो लाइन में खड़ा हुआ आखिरी वाला आदमी है, उसको भी पता है कि वो लाइन में क्यों खड़ा है और उसके साथ संभवतः उसका कंट्रीब्यूशन भी पता है कि वो क्या करने वाला है। ये जब तक नहीं पता चलेगा तो आप ये काम हर जगह पे लीडरशिप जनरेट करके कर सकते हैं। लीडरशिप किसी डायरेक्टर को ही करनी है, किसी प्राइम मिनिस्टर को ही करनी है, किसी मिनिस्टर को करनी है, ऐसा नहीं है। संभवतः हम लीडरशिप अपने-अपने जगह पे कर सकते हैं। हम 4 ही लोगों को लीड करें, हम 2 ही लोगों को लीड करें, लेकिन हम लीड करने की बात करें कि हम उनको उठाएँ, हाथ दें। मैं जब पहली बार एयरक्राफ्ट में बैठा था, एयरप्लेन में बैठा था, हवाई जहाज में, तो जब वो जो अनाउंसमेंट होती है, जो हम सब लोग सुनते हैं, वो अनाउंसमेंट मुझे बड़ी कल्चरल शॉक देके गई थी।
और वो कल्चरल शॉक के बाद में मैं इसके ऊपर जब चिंतन किया तब समझा। अनाउंसमेंट होती है कि अगर ऑक्सीजन की कमी हुई तो ये मास्क नीचे आएंगे, ऑक्सीजन मास्क, और अपने तरफ खींचिएगा, लगाइएगा। यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद में उसने कहा कि बगल वाले बुजुर्ग बच्चों की हेल्प करने के पहले अपना मास्क पहन लीजिए। हमने कहा ये बड़ा कल्चरल शॉक है। आज तक तो बचपन से हमने सुना था कि दूसरे की हेल्प करें, ये कह रहे पहले खुद का लगा लें। बड़ा स्वार्थी विचार है। बाद में सोचा उसके ऊपर, तब पहला मास्क इसलिए खुद को लगाना जरूरी कि खुद को सक्षम करना पड़ेगा, खुद का पैर सक्षम रीति से एक स्ट्रांग तरीके से खड़ा करना पड़ेगा, तभी हाथ देके दूसरे को ऊपर खींच पाओगे, नहीं तो खुद ही गिर जाओगे। और उसीलिए खुद को होना भी एक जरूरी है। पटनायक जी जो कह रहे थे कि फ्री में देना उसलिए ठीक नहीं है कि किसी की पेइंग कैपेसिटी है तो उसको फ्री में देना ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा एक हुआ तो इकोनॉमी नहीं चल पाएगी। ऐसा हमने हुआ तो हम उन तबकों को, उन सेक्टर्स को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे सोसाइटी के जिनके पास कुछ नहीं है। और जब तक वो नहीं आएंगे तब तक बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे। तब तक चैलेंजेस वो भी रहेंगे कि आप आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करो और दूसरा आपको नीचे खींचेगा, दूसरा आपके यहाँ चोरी करेगा, दूसरा आपके यहाँ डकैती डालेगा, कुछ तो करेगा। जो एंटी सोशल एलिमेंट्स तैयार हो जाएंगे। आपको एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ में आत्मनिर्भर होना संभव नहीं है, आप प्रगति करना संभव नहीं है। उसलिए कुछ चीजों को उसी तरह से समझा जाना उचित है। भला है वो मेरे लिए कल्चरल शॉक था पहली बार, बट जब उसको मैंने ध्यान से समझा तो मैंने कहा ये बहुत सही कह रहे हैं कि जब तक कि मैं अपना मास्क नहीं लगाऊं, मैं जब तक जीवित नहीं हूं, मैं दूसरे की हेल्प क्या करूंगा? मैं ही मर जाऊंगा तो दूसरे की हेल्प करने की संभावना खत्म ही हो गई। फिर तो उसके बाद में कुछ भी नहीं है। तो थोड़े में मैं अभी मतलब क्योंकि मुझे जो समय दिया गया था वो शायद खत्म हो चुका है, मैं उसको क्रॉस कर चुका हूँ शायद, तो इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, बट छोटे से बात कह के खत्म करना चाहूंगा कि आत्मनिर्भर होने के लिए आत्मबल की आवश्यकता है, और आत्मबल के साथ में जो आगे बढ़ेगा वो अपने आप में लीडर होगा। और जो लीडर्स, जो हमारे ऑलरेडी लीडर्स है, वो लीडर्स अपने आप को इस भावना से देखे कि जो पटनायक जी ने फिर उन्होंने जो कहा कि मैं सेकंड लाइन ऑफ कमांड बनाना चाहता हूँ, ये बहुत बहुत सेकंड लाइन ऑफ कमांड बहुत संस्थानों में नहीं है, बहुत जगहों पे नहीं है, और हम शायद इसका खामियाजा बहुत जल्दी भुगतने वाले हैं जब सेकंड लाइन नहीं है। क्योंकि जब ये लोग बैटन देने की कोशिश करेंगे तो हमें पता भी नहीं होगा सेकंड लाइनर्स को ये बैटन का करना क्या है, दौड़ना किस दिशा में है। हम जो रिले बैटन होती है पूरा नहीं कर पाएंगे। रिले रेस होती है, एक बैटन दूसरे को दिया जाता है, 4 लोग मिलके वो कंप्लीट करते हैं रेस और जीतते हैं। तो हमें अगर डायरेक्शन ही पता नहीं है, स्पीड ही पता नहीं है, हमें करना क्या है ये पता नहीं है, तो शायद हम ये जीत नहीं पाएंगे। इसलिए उन लीडर्स की आवश्यकता है जो सेकंड लेवल ऑफ लाइन बनाएंगे, जो लोगों को आगे बढ़ना देंगे, उनके पीछे खड़े होकर उनको आगे बढ़ने चूक जाए थोड़े बहुत और फिर चुन ले तो ज़्यादा अच्छा होता है। मैं यहाँ पे अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मैं आप यहाँ पे मुझे बुलाया और मुझे ये समय दिया कि आपके साथ मैं इंटरैक्ट कर सकूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज आपने प्रेरणादायक शब्दों में हम सबका आत्मबल बढ़ा दिया है। आज आपने हमें एक आत्मनिर्भर भारत बनने की एक नई दिशा दिखाई है, जो ये है कि हम सबको पहले अपना आत्मबल बढ़ाना पड़ेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि आत्मनिर्भर भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।